Welcome children. Yesterday we have discussed about the enzymes involved in the DNA replication process. Okay. So let me just remind you what are the enzymes involved in the replication. They were DNA dependent DNA polymerase, okay, and number 2 is your helicase, single strand binding protein, okay. Then fourth one is topoisomerase or gyrase. Fifth one is ligase and sixth one is primase. Okay, so I have already told you the function of these enzymes, their role in DNA replication, but now I will be discussing the mechanism of DNA replication and exactly how these enzymes play their role in the process of DNA replication. So that we will discuss now. Okay, so just remember, keep it in your mind that these are the enzymes required for DNA replication, and I have already discussed about their function in my previous class. Okay, so now I will be discussing what is the other requirement for DNA replication. DNA replication के लिए और किस चीज़ की ज़रूरत होगी? As I have said you children that DNA replication, during DNA replication what happens? Suppose this is the parent DNA. This is parent DNA. Then during replication the two strands get separated and each of these strands synthesize a new strand, new complementary strand. Okay, so these are the daughter DNA. Okay, so these are the daughter DNA. So how these new strands are synthesized? These new strands are synthesized by the polymerization of deoxyribonucleotides. So, besides the enzyme, what is the most important other requirement? Obviously, it is deoxyribonucleotide. Okay. So, the synthesis of this strand or the polymerization of the deoxyribonucleotide is a very enzyme consuming process. It requires a lot of energy, so it is a expensive process. Okay, so what is the other requirement? As I said you, it is the deoxyribonucleotide. So during this replication the deoxyribonucleotides play dual role. Very important children, dual role of deoxyribonucleotide. This plays dual role. ये दो रोल प्ले करता है. Very important from the examination point of view. The first one is that they act as substrate. As you know that I have already told you the polymerization of the DNA strand is a complicated process and it involves a set of enzymes.
So these enzymes, whenever there are certain enzymes, there must be some substrate. And here the substrate is the deoxyribonucleotide. Then what is its next function? Its next function is, as I have said you, that replication is a very energy expensive process. It requires huge amount of energy. Then where from these energy comes? ये energy कहाँ से आता है? So this deoxyribonucleoside itself provide energy for the polymerization reaction. So what is the next function? They provide energy for the polymerization reaction. ये polymerization reaction जो होता है उसके लिए ये एनर्जी प्रोवाइड करता है. ठीक है. So how you can ask how? Because the nucleotides are having high energy phosphate bond. Okay, so these high energy phosphate bonds are broken down during polymerization, and these energy released during the breakdown of the phosphate bond are utilized for the process of polymerization reaction. So very important children, these are the two role of deoxyribonucleotide during replication of DNA. Now let us discuss the replication process or mechanism of replication. So mechanism of replication involves 3 steps. First is initiation, then elongation, and third one is termination. Okay, so these are the 3 steps involved in the mechanism of DNA replication. Excuse me. So we'll be discussing each step separately. Okay, so the first one is the initiation. Let us first discuss initiation. So here I will explain you diagrammatically. Suppose say this is the DNA strand which needs to be replicated, and suppose say, always the children don't forget to mention the direction or the 5 prime and 3 prime end of the DNA molecule. So it is very essential while you are representing a DNA structure, and here are the hydrogen bonds. Okay, so the 2 strands are held together with the help of hydrogen bond. So during initiation what happens? This is first step. Okay, so there is a initiation site in the DNA molecule. DNA molecule में replication शुरू होने के लिए एक स्पेसिफिक साइट होता है जिसको कहा जाता है इनिशिएशन साइट. और मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि वो साइट क्या होता है. देखो बच्चों, आपका जहाँ पर G and C होता है, मान लो डीएनए का कुछ रीजन जहाँ पर GC ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या होगा? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है. सो इसको ब्रेक करना डिफिकल्ट है. बट द रीजन विच इज रीच इन A and T रीजन जहां पर डबल बॉन्ड है, आई मीन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, सो इसको ब्रेक करना इजी होता है. सो द पोर्शन ऑफ द DNA which is reach in AT से
होना चाहिए, इट शुड बी रीच इन AT, ओके, AT. तो that portion act as the initiation site, and the initiation site is recognized by a specific type of protein that is known as initiation protein. It is not given in your textbook, but still then I would like to tell this, because since initiation is there, so there must be a initiation site and there must be a protein which will initiate, which will recognize this origin of replication or initiation site. Okay, so now suppose say the initiation site is located here, यहाँ पर आपका located है initiation site. Okay, तो suppose this is initiation site. Now after being recognized by the initiation protein, the helicase enzyme, so now what happens, helicase enzyme binds to the initiation site. जो साइट को इनिशिएशन साइट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है, वहां पर हेलिकेज एंजाइम बाइंड होता है. तो हेलिकेज एंजाइम का काम क्या है? I have already told you that helicase enzyme breaks the hydrogen bond को break करता है and दो strand को separate कर देता है. ठीक है? That means you can say it causes unwinding of the DNA or separation of the two DNA strand by breaking down the hydrogen bond. Okay? तो सपोज से हम ऐसे डायग्राम आपको बनाएंगे, यहाँ से आपका हेलिकेज जहाँ अटैच था, सपोज से हियर वाज द हेलिकेज एंजाइम, दिस इज हेलिकेज, it has caused unwinding, so here you can see the broken hydrogen bonds, that is इस तरफ आपका क्या है, only bases are there, here the nitrogenous bases are there, but there is no bond formation between these nitrogenous bases. लेकिन बच्चों यहाँ पर एक चीज है, आप देखो ये हेलिक्स ने ओपन किया, लेकिन ये ओपन करने के बाद ये क्या हो सकता है, बिकॉज दे आर कम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर एंड दे हैव एफिनिटी फॉर ईच अदर, तो इसीलिए ये क्या हो सकता है, फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं. इसीलिए क्या होता है, इमीडिएटली आफ्टर द हेलिकेज अनवाइंड्स द डीएनए और ब्रेक्स डाउन द हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक जैसे ही करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, आपका सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन अटैच हो जाते हैं. सो दीज आर द SSB, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन. ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जैसे ही यहाँ बाइंड हो जाएंगे तो क्या होगा, ये दोनों के बीच और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, दे विल कीप अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग रहेंगे. ठीक है, तो हम आपको इसका फंक्शन कल बताए थे. अभी देखो बच्चों, ये हेलिकेज अकेले ये जो अनवाइंडिंग का काम नहीं कर सकता, इसके साथ और एक दूसरा एंजाइम है जिसको कहा जाता है, यहाँ और एक एंजाइम है, दैट इज टोपो आइसोमरेज. ठीक है, ये टोपो आइसोमरेज भी यहाँ पर एक्ट करता है, जो कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड का जो टेंशन है, उस टेंशन को पहले वो रिलीज कर देता है, थोड़ा लूज कर देता है, उसके बाद हेलिकेज ये बॉन्ड को ब्रेक करता है. I think it is clear to you. सबसे पहले टोपो आइसोमरेज, इसका जो टेंशन होता है, वाइंडिंग टेंशन, जो रैपिंग का जो टेंशन होता है, उस टेंशन को रिलीज कर देता है. उसके बाद हेलिकेज ये जो बॉन्ड था, हाइड्रोजन बॉन्ड था दो स्ट्रैंड के बीच, उसको ब्रेक करता है. ठीक है, और एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी बच्चों कि हेलिकेज एट ए टाइम पूरा दो स्ट्रैंड को सेपरेट नहीं कर सकता. Why? Because it requires huge amount of energy.
एंड वेयर फ्रॉम दीज एनर्जी विल कम, इतने सारे एनर्जी एट ए टाइम तो नहीं आ सकता, इसीलिए दिस हेलिकेज एंजाइम opens the DNA strand और separates the DNA strand locally, और धीरे धीरे ये ऐसे मूव करता जाएगा, it will move towards this, और ये धीरे धीरे ऐसे खुलता जाएगा, ठीक है। सो इट इज ए स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे ये खुलता जाता है, और तब तक क्या होता है, इधर से आपका डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसिस होने लगता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इनिशिएशन। आई थिंक इनिशिएशन इज क्लियर टू यू चिल्ड्रन। Okay, now let us discuss the second part. Okay, the second stage, that is elongation. So हमारा initiation हो गया, अभी हम देखेंगे elongation। ये डायग्राम में ही मैं आपको समझाऊंगी। बच्चों यहाँ पर हम हमेशा, as I said you, we have to always mention direction. This is 3 prime and 5 prime। बच्चों पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में जो मैंने बताया था, डीएनए पॉलीमरेज, ये डीएनए पॉलीमरेज बैक्टीरिया में 3 तरह के होते हैं, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2 एंड पॉलीमरेज 3, ठीक है। ये पॉलीमरेज 3 जो होता है, ये पॉलीमराइजेशन, कंटिन्यूअस पॉलीमराइजेशन करता है, एक लॉन्ग चेन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बना सकता है पॉलीमरेज 3। अभी ये पॉलीमरेज 1 एंड 2 का काम क्या है, ये दोनों का काम है प्रूफ रीडिंग, इनका काम है प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग मीन्स, देखो बच्चों, कोई भी आपका प्रिंटिंग हो गया, मान लीजिए जैसे हमारे स्कूल में क्वेश्चन प्रिंट होता है, हम प्रिंटर्स को क्वेश्चन प्रिंट करने के लिए देते हैं, तो अभी उसके बाद वो प्रिंटर वाला एक बार उसको टाइप करता है, फिर हमारे पास भेजता है कि आप इसको प्रूफ रीडिंग कर दीजिए। इसका मतलब इसमें अगर कोई गलती है तो आप उसको निकाल के करेक्शन कर दीजिए, ठीक है। ठीक उसी तरह पॉलीमरेज 3 जो सिंथेसिस करता है डीएनए स्ट्रैंड का, नया डीएनए स्ट्रैंड का, उसका प्रूफ रीडिंग करते हैं पॉलीमरेज 1 एंड 2। और 2 और एक काम कर सकता है, पॉलीमरेज 3 इट सिंथेसाइज ए लॉन्ग चेन ऑफ डीएनए, बट पॉलीमरेज 2 कैन सिंथेसाइज स्मॉल फ्रैगमेंट्स, छोटे छोटे फ्रैगमेंट को सिंथेसाइज कर सकता है। और प्रूफ रीडिंग का जो काम है सबसे, ये है पॉलीमरेज 1 का काम है प्रूफ रीडिंग। ओके, सो ये प्रूफ रीडिंग कैसे करेगा, रिमूवल ऑफ मिसमैच्ड बेस पेयर। मिसमैच, मान लीजिए कहीं पर क्या था आपका, मान लीजिए एक स्ट्रैंड में जो 2 स्ट्रैंड आपका कॉम्प्लीमेंटरी है, एक में जी है लेकिन यहाँ पर गलती से ए आ गया, तो इसमें तो पेयरिंग नहीं हो पाएगा ना, इसमें तो बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा, इसीलिए ये जो प्रूफ रीडिंग के समय पॉलीमरेज 1 इसको रिमूव कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर से ही जो बेस पेयर है उसको डालेगा कौन, पॉलीमरेज 2 डाल देगा, ठीक है। तो इसी तरह ओ टर्मिनल से रिमूव कर सकते हैं, या फिर आपका जो है बीच में से अगर कोई मिसमैच्ड बेस पेयर आ गया तो उसको भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। बट मेजर पॉलीमराइजिंग एंजाइम इज पॉलीमरेज 3, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं हमारा एलोंगेशन। ये जो पॉलीमरेज 3 एंजाइम है बच्चों, ये ऐसे 2 डीएनए स्ट्रैंड होने के साथ साथ ये आकर यहाँ काम करने नहीं लगता। ये कैनॉट वर्क इफ देयर इज नो फ्री OH प्राइम एंड, अगर फ्री OH ग्रुप अगर उसको नहीं मिलेगा तो ये काम नहीं करेगा, तो इसीलिए फ्री OH ग्रुप कौन देगा। So here what happens, the primase enzyme, remember children,
Is this last line visible to you? So this primase enzyme यहाँ पर क्या करेगा बच्चों? So primase enzyme will synthesize a small stretch of RNA, एक छोटा सा stretch RNA बनाएगा. Okay? So this is primase, ये primase enzyme है and this is called RNA primer. RNA primer. Okay? और ये कौन सा डायरेक्शन में हमेशा होगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम. सो ये स्ट्रैंड किस डायरेक्शन में है? 3 to 5 में है. 3 to 5 में है, तो इसीलिए ये जो स्ट्रैंड है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में हमेशा ये एंजाइम सिंथेसिस करेगा. ठीक है, तो ये स्ट्रैंड में इस डायरेक्शन में किया, इस स्ट्रैंड में काम करेगा. इस स्ट्रैंड में सपोज से इट विल स्टार्ट, यहाँ से हेलिकेज ओपन किया तो यहाँ पर आपका प्राइमर फॉर्मेशन होगा. ठीक है, सो दिस इज आरएनए प्राइमर. ओके, सो ये हो गया आपका आरएनए प्राइमर. अभी 3 प्राइम एंड में क्या होता है आपको पहले से हम बता चुके हैं. डीएनए स्ट्रक्चर जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हमने बताया था, उसमें हमने बताया था कि यहाँ पर OH ग्रुप फ्री रहता है. सो यहाँ 3 प्राइम OH, ये इधर से क्यों आया बच्चों? क्योंकि ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम काम करेगा कौन सा डायरेक्शन में? 5 प्राइम टू 3 प्राइम. ओके, 5 प्राइम टू 3 प्राइम. और ये स्ट्रैंड कैसे है? 3 to 5 में है. ठीक है, ये स्ट्रैंड ऐसे है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो क्या होगा? ये 3 अगर है तो ये 3 है, ये पोर्शन 3 है, तो यहाँ से 5 से शुरू होगा. ठीक है, सो 5 to 3. अभी नाउ द 3 प्राइम OH free end is available. यहाँ पर 3 प्राइम OH end is available. Now the polymerase 3 will act. अभी polymerase 3 क्या करेगा? यहाँ पर deoxyribonucleotide को जोड़ेगा and the synthesis will continue. और इस तरह synthesis continue होगा. So this is done by polymerase 3 enzyme. This is by polymerase 3 enzyme and this is the daughter DNA. और यहाँ क्या चाहिए हमको? deoxyribonucleotide. तो deoxyribonucleotide यहाँ जुड़ेंगे और ये एक पॉलीमर और एक चेन ऑफ deoxyribonucleotide will be formed. और बच्चों ये जैसे जैसे बनता जाता है वैसे वैसे, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पर है, मान लो यहाँ पर A था तो यहाँ पर T होगा, यहाँ G था तो यहाँ C आएगा, तो इमीडिएटली दे विल फॉर्म बॉन्ड. ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर देंगे. ठीक है, वो हम बाद में मैं आपको बता रही हूँ. ठीक है, सो नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलोंगेशन. ये प्रोसेस को, ये भी यहाँ से ऐसे बढ़ने लगेगा. दिस इज कॉल्ड इलोंगेशन. ओके, नाउ इलोंगेशन का और एक स्टेप में मैं आपको बताऊंगी, बट यहाँ पर मैं ये डायग्राम को मिटाने जा रही हूँ. सो जस्ट लेट मी रिपीट इट, क्योंकि मैं मिटाने से पहले आपको एक बार फिर से समझा देना चाहती हूँ. हेलिकेज एंजाइम यहाँ पर खोल देता है दोनों स्ट्रैंड को. सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन इमीडिएटली यहाँ बाइंड हो जाता है ताकि ये 2 स्ट्रैंड फिर से ना जुड़े. उसके बाद पॉलीमरेज 3 एंजाइम को काम करने के लिए एक 3 OH एंड चाहिए. दैट इज 3 OH एंड पाने के लिए प्राइमेज एंजाइम एक्ट करता है. प्राइमेज एंजाइम एक छोटा सा स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ आरएनए को सिंथेसाइज करता है. इन व्हिच डायरेक्शन? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन. Excuse me. Then the polymerase 3 comes into its action और polymerase 3 बाकी काम करता है और पॉलीमराइजेशन करके इस तरह polymerase 3 भी कौन से डायरेक्शन में काम करेगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम ऑलवेज. सो इस स्ट्रैंड में सिंथेसिस कैसे होगा? ये दिस इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम. ओके, एंड दिस इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम. तो इस तरह ये सिंथेसिस होगा. ठीक है,
अभी इलाइगेशन का और एक डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगी। So now we are discussing elongation. This is 5 prime, this was 3 prime, 3 prime, 5 prime. ठीक है, अभी देखो बच्चों, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ से आपका आरएनए प्राइमर था। आरएनए प्राइमर के बाद क्या सिंथेसिस हुआ? आरएनए प्राइमर मैं ऐसे आपको थोड़ा सा मोटा करके दिखा रही हूँ। उसके बाद ये सिंथेसिस हुआ, ठीक है। अभी बच्चों पहले हेलिकेज यहाँ से खुला था, सपोज यहाँ से खुला था। अभी हेलिकेज जैसे जैसे ऊपर की तरफ मूव करेगा, जैसे जिपर लाइक, जीप आप जैसे खोलते हो ना, जीप खोलने से क्या होता है, जैसे जैसे वो जीप का जो हुक होता है ना, उसको हम जैसे जैसे खींचेंगे तो वैसे खुलता जाता है। तो हेलिकेज अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आने से ये और भी खुल जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ हेलिकेज था तो ये सिंथेसिस यहाँ से शुरू हुआ था इस स्ट्रैंड में 3 to 5 प्राइम स्ट्रैंड में, और ये यहाँ तक मूव किया था। और यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से शुरू होकर इस तरफ आया था, यहाँ तक आया था सिंथेसिस। ये आरएनए प्राइमर था, ठीक है। अभी जब हेलिकेज मूव किया यहाँ तक गया और डीएनए और थोड़ा खुल गया, लेकिन ये स्ट्रैंड में क्या हो रहा है, इट इज ओपनिंग इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ओपन हो रहा है। तो ये जो सिंथेसिस है ये कंटिन्यूअस ऐसे ही चलता जाएगा, ओके। दिस इज इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन इस स्ट्रैंड में क्या होगा बच्चों, ये हमेशा 5 to 3 में होना है। तो अभी जब हेलिकेज यहाँ चला गया और थोड़ा डीएनए खुल गया, तो आपका क्या होगा, यहाँ फिर से और एक प्राइमर आएगा, आरएनए प्राइमर, और ये फिर से पॉलीमरेज 3 एक्ट करेगा और ये एक फ्रैगमेंट बनाएगा। सो इन दिस वे द सिंथेसिस ऑफ डीएनए or polymerization is continuous on the strand which is in 3 prime to 5 prime direction. 3 prime to 5 prime direction में जो स्ट्रैंड है उसके ऊपर जो सिंथेसिस हो रहा है वो कंटिन्यूअस हो रहा है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कंटिन्यूअस सिंथेसिस, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस इज नॉट कंटिन्यूअस सिंथेसिस। पहले हेलिकेज यहाँ पर खुला था तो यहाँ पर एक फ्रैगमेंट हो गया, फिर और थोड़ा ऊपर चला गया तो यहाँ एक फ्रैगमेंट हो गया। सो दिस इज डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस, सो दिस इज डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। सो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस के वजह से क्या फॉर्मेशन हो रहा है, छोटे छोटे फ्रैगमेंट बन रहे हैं, एंड दीज फ्रैगमेंट्स आर नोन एज ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, ओके। एंड ड्यू टू अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए बाय द एक्शन ऑफ हेलिकेज, ये क्या फॉर्मेशन हुआ, एक फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर बन गया ना। सो दिस इज कॉल्ड replication fork, this is called replication fork, ठीक है। सो ये रेप्लिकेशन का फॉर्क का डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें क्या क्या आपको देना है, कंटिन्यूअस सिंथेसिस दैट इज इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, यानी जो स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में है, और दूसरे स्ट्रैंड में डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस, ओके। और उसका जो फ्रैगमेंट है उसको कहा जाता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट। अच्छा बच्चों, ये जो स्ट्रैंड है ये क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं हो रहा है, फिर से प्राइमर सिंथेसिस नहीं हो रहा है, ठीक है, इसमें कोई डिले नहीं होता, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि इसमें कोई ऑब्स्टेकल नहीं है,
ये कंटिन्यूसली सिंथेसिस होने लगता है, इसलिए ये थोड़ा जल्दी सिंथेसिस हो जाता है। दैट्स व्हाई दिस स्ट्रैंड इज नोन एज लीडिंग स्ट्रैंड। लेकिन ये स्ट्रैंड का सिंथेसिस थोड़ा लेट होता है, क्योंकि हर बार जितना हेलिकेज मूव करेगा उतने बार उसको आरएनए प्राइमर सिंथेसिस करना है और ये फ्रैगमेंट बनाएगा। सो दिस इज कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, ये थोड़ा लैग हो रहा है, सो इसीलिए इसको कहा जाता है लैगिंग स्ट्रैंड। So this is the structure of replication fork and this is how the elongation takes place. Now let us come to the third step, that is termination. So now how the termination takes place. Let me rub this one. This diagram is very important, children. Now the next step is termination. Okay, so here 5 prime to this is 3 prime, 3 prime to 5 prime. अभी हमारा डीएनए सिंथेसिस हो चुका है, हो रहा है या फिर हो चुका है, जितना होना था हो चुका है। तो यहाँ से हमारा क्या था, जब टर्मिनेशन होता है तब क्या क्या होता है, आप देखिए यहाँ पर ये हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और यहाँ क्या था हमारा आरएनए प्राइमर था, और यहाँ बहुत सारे आरएनए प्राइमर थे। ठीक है, क्योंकि ये फ्रैगमेंट में सिंथेसिस हुआ था। ये आरएनए प्राइमर यहाँ पर, यहाँ फिर आरएनए प्राइमर, फिर ये फ्रैगमेंट। ठीक है, मैं 2 ही फ्रैगमेंट आपको दिखा रही हूँ। सो ये फ्रैगमेंट। ठीक है, अभी बच्चों क्या होगा, इन दिस लास्ट स्टेप व्हेन द सिंथेसिस इज ओवर, आरएनए प्राइमर इज रिमूव्ड। इज रिमूव्ड। कौन रिमूव करेगा, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 1 इसको रिमूव कर देगा। ठीक है, अभी सारे आरएनए प्राइमर जितने थे रिमूव हो गए। अभी रिमूव होने के बाद ये जो स्पेस है इसको कौन सिंथेसिस करेगा, हु विल सिंथेसाइज। ये जो लेफ्ट आउट पोर्शन है, ये जो है, ये पोर्शन है, ये गैप जो है, ये गैप को कौन फिल करेगा, gaps are filled by polymerase 2। polymerase 2 छोटा छोटा फ्रैगमेंट सिंथेसिस कर सकता है। तो अभी ये क्या किया, यहाँ पर छोटा फ्रैगमेंट, यहाँ पर छोटा फ्रैगमेंट। ठीक है, ऐसे छोटा छोटा फ्रैगमेंट बना दिया। लेकिन ये फ्रैगमेंट को ज्वाइन कौन करेगा, हु विल ज्वाइन दिस फ्रैगमेंट्स। इस फ्रैगमेंट के साथ इसको, इसके साथ इसको कौन ज्वाइन करेगा, नाउ ligase will join the Okazaki fragments। ये जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स थे ये अभी जुड़ गए। हाउ, बाय द एक्टिविटी ऑफ लाइगेज, लाइगेज के द्वारा ये अभी जुड़ गए। एंड नाउ इट हैज फॉर्म्ड ए कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। ठीक है, और जब ये स्ट्रैंड बनता जाता है तब बच्चों याद रखो, अगेन हियर टोपोआइसोमरेज काम करता है, और जिसके वजह से यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंटरी बेस था उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगते हैं। दैट मीन्स ये फिर से वाइंडिंग ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस। तो जिसके वजह से ये पिक्चर, हाउ विल बी दिस पिक्चर, ये पिक्चर कैसे होगा आपका। ठीक है, तो ये जो स्ट्रैंड यहाँ से बने, ये स्ट्रैंड कैसे होंगे, ओके, ये कहाँ से, यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है,
और यहाँ ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनते जाएंगे. So this is how the replication takes place, and in this way the whole DNA molecule gets replicated. Okay, so children, I think it is clear to you how the termination takes place, and that is how elongation and how initiation takes place. So step by step I have explained it, and children, these enzymes, their role and the replication form, these things are very very important. So with this your DNA replication process is over. So next class we will be discussing the transcription. Okay, so get ready for that, but before that you please go through this video thoroughly so that your replication process, the concept will be very much clear to you, so that you can understand transcription. Thank you very much.